2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকখন অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকখনত আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰী নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে এই কাৰ্যনিৰ্বাহকখনৰ তাৎপৰ্য আৰু সৌষ্ঠৱ দুইটাই বৃদ্ধি কৰিছে। আমি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ নাড্ডা ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছো। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাৰ হৈ আমি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। हमारे सबके लिए सौभाग्य है कि हमारा प्रदेश का कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सभापति खुद हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे लिए इससे ज़्यादा सम्मान का विषय कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं नाड्डा जी को असम का पावन भूमि में स्वागत करता हूँ। नाड्डा जी का नेतृत्व में 2023 सन में हमारा भारतीय जनता पार्टी को खूब कामयाबी मिला। नड्डा जी का नेतृत्व में 2023 सन में हमने दूसरा बार त्रिपुरा में सरकार बनाने में कामयाब हुआ। फिर 2023 सन में ही हमारे मेघालय में सरकार बने, नागालैंड में सरकार बने। दूसरा बार नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुआ। फिर गुजरात का चुनाव हुआ। नड्डा जी का नेतृत्व में हमने गुजरात का चुनाव जीता। फिर हमारा चुनाव हुआ, हमारे राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ। हम तीनों स्टेट जीतने में कामयाब रहा। नड्डा जी का कुशल सांगठनिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी जी का विशाल नेतृत्व में भारत ने दोबारा आस्था प्रकाश किया और ये विधानसभा चुनाव का जो हमारे जीत हुआ, ये जीत से ये एक प्रकार से कंफर्म हो गया है कि मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग तीसरा बार सरकार गठन करेगा। मोदी जी तीसरा बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेगा। मैं नड्डा जी को आपका कुशल सांगठनिक नेतृत्व के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सम्मान देता हूं और असम का हर कार्यकर्ता का ओर से आपको अभिनंदन भी करता हूं। आज आमार सकलो उपस्थित सदस्य आमार ज्येष्ठजन कनिष्ठजन आमी सकलोए जानो जे आरो मात्र केइटामान माह पिछतेই आमार राष्ट्रय लोकसभा निर्वाचनत अवतीर्ण हब। भारतीय जनता पार्टीर आमार एक नेतृत्व आछे, आमार एक आदर्श आछे और आमार एक लक्ष्य आछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्व एतिया केवल मात्र भारतते सीमाबद्ध हो थका नाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया आजिर दिनटुत पृथिवीर भितरते आटाइतকৈ जनप्रिय राजनैतिक नेता, आटाइतকৈ समादृत राजनैतिक नेता। तेखेतर सबल नेतृत्वই आमाक आको एबार निश्चित विजय दिब, तात मोर कोनो सन्देह नाई। भारतीय जनता पार्टीर এইবাৰ লক্ষ্যই হল আগলা বাৰ 400 পাৰ 400 সিটু আমি অতিক্ৰম কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি আকৌ এবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব। অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্য আৰু যদি আমি গোটেই উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ প্ৰায় 25খন আসন লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূবে অৰিহণা যোগায়। অসমৰ 14খন আসন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন হয়। যোৱা বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি
9খন আসনত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এইবাৰ আমাৰ লক্ষ্য আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে 14খন আসনৰ ভিতৰত আমি যিমান পাৰোঁ বেছিকৈ আসন বিজয়ী হৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিজয় যাত্ৰাত অসমবাসীয়ে অৰিহণা যোগাব লাগিব, অৱদান যোগাব লাগিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰাই আমি সংগঠন শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু পোলিং বুথত শেষ বেলটটো কাষ্ট নোহোৱালৈকে আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে যোৱা 6টা মাহত আমি যি ধৰণে কাম কৰিছোঁ, বিটিআৰ হওক, কাজিৰঙা হওক, দৰং ওদালগুৰি হওক, বৰপেটা হওক, আমি যি ধৰণে প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ প্ৰত্যেক বুথলৈ আমি গৈ আমাৰ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰিছোঁ, মই নিশ্চিত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিজয় ৰথ অসমত অব্যাহত থাকিব আৰু উজ্জ্বলৰ পৰা উজ্জ্বলতালৈ গতি কৰিব। আজি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আমি প্ৰথমবাৰ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ প্ৰচেষ্টাত অসমত সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম সমাপ্ত হ'ল। আমি যেতিয়া ৰাজ্যৰ শাসনলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি অসমীয়া জাতিক, অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি অসমৰ ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা আৰু আমাৰ যি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তাক আমি সুনিশ্চিত কৰিম। যোৱা নিৰ্বাচনত আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যদি শাসনলৈ উভতি আহে তেতিয়াহ'লে আমি অসমবাসীৰ অধিকাৰ আমি সুনিশ্চিত কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমত যি ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ল, সেই প্ৰক্ৰিয়াই 106টালৈকে চিট আমাৰ খিলঞ্জীয়া, বৰাকৰ খিলঞ্জীয়াই হওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে খিলঞ্জীয়াই হওক, তাৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰিলে। मैं नड्डा जी को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में 2023 सन में जो सरकार ने, चुनाव आयोग ने जो डिलिमिटेशन का काम किया असम में, उनका परिणाम स्वरूप आज असम का 106 कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे इंडिजिनस लोगों के लिए सुनिश्चित हो चुका है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो अवदान है, इसको हमारा जाति, हमारा प्रदेश हमेशा विथ लॉट ऑफ ग्रेटफुल हमेशा इसको स्वीकृति देगा, ये मैं विश्वास करता हूं। थोड़ी दिन पहले अल्फा का शांति समझौता हुआ, उस समझौता में भी 2 ऐसा क्लॉज का उल्लेख किया गया कि जो अभी डिलिमिटेशन हुआ उनका ही प्रिंसिपल आगे भी चलते रहेगा और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वोटर बनने का पहले कोई सारा व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। ये दोनों क्लॉज के लिए हमारा असम का भविष्य कम से कम 50 साल के लिए सुरक्षित हो चुका है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को असम वासियों का ओर से धन्यवाद देता हूं। আজি আমাৰ অসম ভাৰতৰ এখন অগ্ৰগামী ৰাজ্য। প্ৰতি বছৰে আমাৰ অসমৰ আৰ্থিক সচ্ছলতাই হওক বা অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ে হওক, আজি আমি বিশ্বৰ বৰসভালৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি লাচিত বৰফুকনৰ সৌৰভ সমগ্ৰ ভাৰততে বিয়পি পৰিছে। চৰাইদেউৰ মৈদাম ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। আমাৰ বাপতি সাহোন বিহু আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সমাদৃত হৈছে।
এইবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা বিধানসভাৰ যি আগন্তুক অধিৱেশন সেই অধিৱেশনত আমি বৰপেটা মাজুলী আৰু বটদ্ৰৱাক প্ৰটেক্টেড বেল্ট আৰু ব্লকলৈ ৰূপান্তৰ কৰি অসমীয়া জাতিৰ যি আমাৰ সন্মানৰ প্ৰতীক সেই সন্মানৰ প্ৰতীকসমূহক আমি সুৰক্ষা কৱচ পিন্ধাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনে প্ৰতিটো দিশতে আজি আমি নিৰন্তৰ গতিত আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। 25খন মেডিকেল কলেজৰ সপোনেই হওক, এইমছৰ সপোনেই হওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এখন নহয়, দুখন নহয়, তিনিখন নহয়, 4খন দলঙৰ সপোনেই হওক, মাজুলীক যোৰহাটৰ পৰাই হওক, লখিমপুৰৰ পৰাই হওক সংযোজিত কৰাই হওক, আজি অসমে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এক तीव्र अर्थनैतिक गति रे धावमान होइसे। चुनाव का समय में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जब आए थे, उन्होंने घोषणा पत्र का जब उन्मोचन किया था, वो समय हमने 3 प्रमुख वादा किया था असम वासियों के लिए। हमने वादा किया था अगर हमारा सरकार होते हैं तब हम 1 लाख सरकारी नौकरी देने का व्यवस्था करूंगा। मैं गौरव का साथ बोल सकता हूं कि 90,000 युवकों का हमने 3 साल में सरकारी नौकरी देने का काम किया और 40,000 और पोस्ट का हमने एडवर्टाइज भी देने में सक्षम हुआ। आज हमने जब मिशन वसुंधरा का स्टार्ट किया था तो लोगों का मन में प्रश्न था, क्या ये मिशन वसुंधरा का सुযোগ लेके हुए क्या असम का जो मूल निवासी है क्या वो लोग भी जमीन का अधिकार मिलेगा? हमने 3 लाख लोगों के लिए हम जमीन का व्यवस्था किया और उसमें 80% जमीन खाली हमने एसटी, एससी और ओबीसी लोगों के लिए हमने सुरक्षित किया। মানুহৰ মনত থকা প্ৰশ্ন, আজি যদি 90,000 চাকৰি পোৱা লৰাৰ যদি আমি এটা এটাকৈ নাম চাম তাতো খিলঞ্জীয়াৰ বিজয়, আৰু যদি আমি মিছন বসুন্ধৰাত পোৱা এটা এটাকৈ যদি হিতাধিকাৰীৰ নাম চাওঁ তাতো আমাৰ অসমৰ মূল নিবাসীসকলৰ গৌৰৱ ধ্বজা আজি বিজয়েৰে উৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। आज असम में कानून व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। कानून का जो परिभाषा था, प्रति साल अगर 1.5 लाख केस असम में रजिस्टर होते थे, आज 60,000 तक वो केस का रजिस्ट्रेशन भी कम हो चुका है और असम में एक शांति का माहौल भी कायम हो चुका है। आज असम हर जिलों में, हर गांव में आज हम लोग डेवलपमेंट कर रहा हूं, हम विकास का और आगे बढ़ रहा हूं। चुनाव का समय भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि अगर हमारा सरकार आते हैं हम 2 लाख रुपया करके हमारा युवाओं को हम देने का व्यवस्था करूंगा और वही धन से हमारे अनएम्प्लॉयड लोग अपना व्यवसाय शुरू करेगा। इस काम का भी हमने आगे कर दिया। हमारा ये एक ऐलान था कि हमारा जितना लोगों का माताओं का माइक्रो फाइनेंस का लोन था हम वो भी रिहा कर दूंगा। 25 लाख माताओं का 19 लाख माताओं का लोन हमने रिहा भी कर दिया और वो लोग दोबारा लोन लेने का काम भी शुरू कर दिया है और दोबारा लोन लेने का बाद वो लोग निरंतर लोन भी अभी बैंक में रिटर्न कर रहा है। असम का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक से लोन लेता है, हमारा लोन रिटर्न का परसेंटेज आज 99.2% तक हम लोग पहुंच चुका है। असम एक छोटा प्रदेश है, मध्य प्रदेश का अगर हम कंपेयर करता हूं, असम एक छोटा प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने एक दिन में ही 4,23,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का घर का
विमोचन किया था। मैं नड्डा जी को बताना चाहता हूं, अभी अभी मैं जाके प्रधानमंत्री जी को मिल के आया हूं और मैं उनको आमंत्रण किया हूं कि आप एक दिन में ही 6 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आप उन्मोचन करके उनका गृह प्रवेश करवा दीजिए। लोगों को बहुत खुश है कि हम आज आपने जो भी पैसा दिया था उनको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। हमने धन का हमने अच्छा से उपयोग किया हो और फरवरी महीना में हम तैयार हो जाऊंगा कि 6 लाख हाउस, 6 लाख आवास हम एक ही मंच से हम लोगों को वितरण का काम शुरू कर दूंगा। हमने आगे भी बढ़ा, प्रधानमंत्री आवास योजना का साथ साथ सीएम आवास योजना का भी काम हमने शुरू कर दिया हो। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, 30 लाख फैमिली को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। जो नड्डा जी जब हेल्थ मिनिस्टर था तब ये स्कीम भारत का गरीबों के लिए उपहार हिसाब से मोदी जी ने दिया था। आज हम 30 लाख लोगों का साथ साथ 30 लाख फैमिली का साथ साथ हमने आज सीएम आयुष्मान असम का शुरुआत किया। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।